सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 4 जिसमें हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं फेज इक्विलिब्रियम 2। ओके, सो इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, है ना, जैसे वन कंपोनेंट डायग्राम, टू कंपोनेंट्स डायग्राम, फेज डायग्राम्स होते हैं ये। तो ये हमें पढ़ने हैं। एंड देन यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक पॉइंट, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कभी कभी आपको आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन कंपोनेंट सिस्टम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन directly we will come to what silver and lead diagram, that is example of two component system. Okay, so let's start with this वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल कैसे अप्लाई होता है, कैसे चेंज होता है, क्या कर्व्स होते हैं, क्या एरिया होता है, क्या पॉइंट होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम। ओके, नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। सो okay, coming to one component system, now I am saying one component. Okay, so either solid, either sulfur or the water, or any one individual thing will be there. Okay, that is what one component. So if I'm saying one component, the phase rule is what? F equals to c plus 2 minus p, c equals to 1 ho jayega, 2 plus 1 3, 3 minus p. This will be what? F ki value. F is what? Degree of freedom. Okay, now we will take this f equals to 3 minus p and we will see these three and four things. Okay, first is what? Maximum number of phase कितने हो सकते हैं आपके? Solid, liquid, gas, ये तीन ही phase हो सकते हैं maximum. So there are maximum 3 phases that can exist. Okay, so what will be this? F equals to p equals to कितना हो जाएगा? 3 maximum. Now coming to maximum number of degree of freedom. So अगर आपको यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी है, then डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आपको p की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। मिनिमम फेज कितना हो सकता है? एक, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। मिनिमम वैल्यू है फेज की। सो इफ यू विल पुट वन, द मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम or the maximum degree of freedom will be what? 2. This means what? Either the temperature or the pressure, or the temperature or the what? Any other degree of freedom can vary. So maximum degree of freedom can be 2. Now one phase equilibrium. This means what? This means एक सिस्टम है आपका, या कोई भी आपने कंपोनेंट लिया है, मे बी सिस्टम ही मान लो, जैसे आपने वाटर लिया, तो इट कैन एग्जिस्ट इन मैक्सिमम 3 फेज सॉलिड, लिक्विड, गैस. So if you will put this value here, you are getting what? F equals to 2. This means what? This system is a bivariant system. This means what? Temperature and the pressure can be very independent of each other or without affecting the phase. Okay, now if you will see univariant, तो आपको मैं बताऊंगी कैसे bivariant से univariant अलग है. This system is what? Bivariant. This means both pressure as well as temperature could be varied independently without affecting the phase change. Okay, अगर solid से liquid change हो रहा है, liquid से gas change हो रहा है, तो temperature और pressure they can vary independently. temperature के इफेक्ट से pressure के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, and vice versa. Okay, now coming to two phase equilibrium. So what will happen? F will equals to what? 1, है ना. F equals to 1 हो जाएगा. So degrees of freedom आपकी 1 होगी. This means what? Univariant. This means either the pressure or the temperature could be varied what? Independently. This means what? If you vary what? If you vary the temperature to a certain value, then pressure automatically आपका change हो जाएगा. यहाँ पे ऐसा नहीं था, है ना. They both are independent of each other. This means both pressure as well as temperature could be varied independently without affecting phase change. Now, either the pressure or the temperature could be varied independently, but this was not added here. That is, phase change यहाँ पे affect होगा. Okay, so if you are varying and bringing temperature change, the to certain value, the pressure of the system automatically आपका change हो जाएगा. Okay, now these are some examples आपके दिए हुए हैं कि टू फेज इक्विलिब्रिया पॉसिबल. अगर एक कंपोनेंट में आप देखो, टू फेज मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, है ना, सॉलिड वेपर,
सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज, है ना, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपका 2 फेज इक्विलिब्रियम की अगर आप वन कॉम्पोनेंट में बात करते हो। ओके, नाउ 3 फेज इक्विलिब्रियम। 3 फेज इक्विलिब्रियम में 3 फेजेस हो जाएंगे, सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इनवेरिएंट। दिस मीन्स व्हाट, नाइदर द प्रेशर नॉर द टेम्परेचर कुड बी वेरीड विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट, आपको इक्विलिब्रियम चेंज करना पड़ेगा। और वो पॉइंट जहां पे तीनों फेजेस इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस, दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। एंड दिस पॉइंट, ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपको वन कंपोनेंट सिस्टम का। यहाँ पे आप देखोगे दिस पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या वेपर, तीनों एक ही पॉइंट पे ओ पे एग्जिस्ट करेंगे। दिस पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। एंड नाउ वी विल सी कि आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें किसी डायग्राम में एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर का डायग्राम आता है एग्जाम में। सो वाटर का फेज डायग्राम आप यहाँ पे अभी देखोगे, कहाँ गया, दिस, ओके, फेज डायग्राम। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, उसके पहले हम देख लें कि जनरल डायग्राम के लिए आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एरियाज एक्सप्लेन करने पड़ते हैं किसी भी डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 एरिया है, दैट इज ओ ए ओ बी के पास वाला एरिया एक, है ना, ओ बी ओ सी के पास वाला एक एरिया, ओ ए एंड द ओ सी के पास वाला। तो यहाँ 3 एरियाज है। नाउ इफ यू कम टू व्हाट, लाइंस या कर्व्स, सो हाउ मेनी कर्व्स, वन कर्व ओ ए, वन कर्व ओ बी, one curve OC and OA dash. ठीक है, now coming to what, points. So point is only one, that is triple point. Okay, so O is the triple point. Now there are different types of curves. For example, if you will see curve OA, if you will see curve OA, you will see what, solid and the vapor. Okay, OA ये है, so solid and the vapor are in equilibrium. So this curve is known as sublimation curve. If you will see OB curve, OB curve को आप देखोगे तो solid and the liquid are in equilibrium. This means this curve is the fusion curve. Now if you will see OC, okay, OC, OC को देखोगे तो liquid and the vapor are in equilibrium. So what will happen? It is a vapor pressure curve. Okay, now OA dash, OA dash OC का ही extension है, OA dash OC का extension है, इसलिए हम इसको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि लिक्विड एंड वेपर ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बट इट इज नथिंग बट द बैकवर्ड व्हाट एक्सटेंशन ऑफ ओसी कर्व। तो आपने ओसी वेपर प्रेशर ही देखा था, लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम था, यहाँ भी लिक्विड वेपर में ही रहेगा। तो आप इसको मेटास्टेबल कर्व को किससे डिनोट करते हो, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, एंड इट इज नोन एज मेटास्टेबल कर्व। एंड इस कर्व पे क्या होता है, ऑर्डिनरीली we would expect the substance to freeze when cooled below its freezing point. So metastable curve में ये चीज possible हो पाती है, it is possible to cool a liquid below its freezing point, है ना। Now ये एक ही डायरेक्शन में आपको मिल सकता है metastable equilibrium, and the liquids at such low temperature are known as supercooled liquid. And these points, so point आपको ट्रिपल पॉइंट मिलेगा, that is point 0 O, जहाँ पे आपको solid, liquid and vapor तीनों जो आपके एरियाज होते हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम। नाउ दिस यू डोंट हैव टू स्टडी, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। नाउ वाटर, सो वाटर वन कंपोनेंट का एग्जांपल है, दिस मींस ओनली वाटर इज इन्वॉल्व, है ना। वाटर में क्या 3 फेज हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो 3 फेजेस हो सकते हैं, इंडिविजुअल फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है ये। तो ये पॉसिबिलिटीज दिखाई हुई है कि फेजेस में कैसे कैसे वेरिएशन आएगा। So 3 different one phase equilibrium, one phase, okay. So one phase can be solid, liquid and the gaseous. Now water can exist 2 phase equilibrium, that is what, solid and liquid, liquid and the vapor, है ना, correspondingly 3 phase. Now 3 phases में आप देखोगे तो solid, liquid and the gas तीनों में equilibrium हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी आपको ये एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट पॉइंट अगर आपको आता है क्या, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, 3 चीजें। फिर आप देखोगे वन फेज इक्विलिब्रियम, तो वन फेज इक्विलिब्रियम में आपको मैंने अभी बताया था, आपको क्या मिलता है, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मिलती है। दिस मींस व्हाट, आइदर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द फेज ट्रांजिशन। ओके, सो दिस मींस व्हाट, बाइवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा ये, बाइवेरिएंट। नाउ कमिंग टू व्हाट, कर्व्स। सो कर्व्स मैंने आपको बताया, ये देखो ये फेज डायग्राम है वाटर का, OA, OB, OC। नाउ O is what, आइस है यहाँ पर,
OB एंड OC के बीच में वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, OA एंड OC के नीचे वाले एरिया में आपका वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। तो इन तीनों कर्व्स को, इन तीनों एरियाज को, इस ट्रिपल पॉइंट को यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ इफ यू विल सी OA curve, OA is what? Sublimation curve, because solid is in directly contact with what? Vapor. So this is what? Sublimation curve. एंड जब हमने क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला था दैट इज dp by dt डेल्टा H अपॉन डेल्टा TV। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंस इट इज अ सब्लिमेशन प्रोसेस तो आपको यहाँ पे सिर्फ सब्लिमेशन लिख देना है। ओके, नाउ कर्व OB को देखोगे, कर्व OB को देखोगे तो आइस इन द वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस विल बी व्हाट? फ्यूजन कर्व। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आप फ्यूजन, हेट ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर फ्यूजन का लिख दोगे। नाउ OC देखोगे तो OC आपका जो कर्व था दैट इज ये, वाटर एंड द वेपर वर इन इक्विलिब्रियम। सो वेपर प्रेशर कर्व था ये, तो यहाँ पे आप वेपर वेपर की हीट एंड द टेम्परेचर आ जाएगा। नाउ 3 इक्विलिब्रियम दैट इज पॉइंट O, दैट इज व्हाट? ट्रिपल पॉइंट था ये, जहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द 3 फेज इक्विलिब्रियम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वुड बी 0। यहाँ तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस मीन्स इनवेरिएंट है, इट इज व्हाट? इनवेरिएंट। एनी चेंज इन प्रेशर और द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा एंड दोनों फेजेस जो हैं आपके लॉस्ट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट? Triple point or the point O. Now OA dash, what's the metastable curve? This is what? You can cool the water below its freezing point. This means what? We are able to cool water below its freezing point without letting ice को separate किए बिना। Now critical point you all know that critical point में above क्या होता है, below क्या होता है। So critical temperature क्या होता है? The temperature जिसके ऊपर gas cannot be liquefied and the temperature below the pressure above which liquid cannot be vaporized. So this was the phase diagram of water. आपको सिर्फ यहाँ पे 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, that is phase transition, second areas, and the third is what? Triple point. Okay, now coming to what? Phase diagram of sulfur. So ये कभी कभी पूछ लेता है। So sulfur allotropes में exist करता है। Allotropes are the forms, different forms. Okay, so sulfur रोम्बिक में, लिक्विड में, मोनोक्लिनिक में, वेपर या गैसियस सल्फर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो रोम्बिक को SR से डिनोट किया है, मोनोक्लिनिक को SM से, वेपर को SV से, लिक्विड को SL से। नाउ यहाँ पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज बताएंगे कि देयर आर 6 टू फेज इक्विलिब्रिया। अगर आप 2 फेज इक्विलिब्रिया कंसिडर करते हो तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं आपकी ड्रॉ करने की। तो 6 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, या तो मोनोक्लिनिक और वेपर फेज आपका इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे करके यू कैन चेंज 6 टाइम्स। ओके, नाउ आपका क्या हो सकता है, 4 3 फेज इक्विलिब्रिया पॉसिबल हो सकते हैं। दिस मीन्स आइदर रोम्बिक, वेपर एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रिया, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड द लिक्विड आर द इक्विलिब्रियम। तो ये आप ऐसे करके 4 बार 4 पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। बट क्या 4 फेज इक्विलिब्रिया पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दिस इज द फेज रूल। If you will apply here, you will get degrees of freedom -1 and -1 it is not possible, इसलिए 4 फेज इक्विलिब्रियम आपका पॉसिबल नहीं हो पाता है। ना 1 फेज इक्विलिब्रियम में आपका, मैंने आपको बताया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 2 आता है। सो इट इज अगेन अ बाइवेरिएंट सिस्टम। दिस मीन्स अगेन यू कैन वेरी व्हाट? टेम्परेचर एंड द प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, सो ये आपके रीजन्स दिए हुए हैं, दैट इज SR ABEF के पीछे है, ABE and F। यहाँ पे आपका रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है। SM देखोगे तो SM बिटवीन BCE, दिस मीन्स ये जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है SM, दैट इज मोनोक्लिनिक। फिर आप देखोगे FEC, FEC इज वेयर? FEC दिस रीजन एंड अबव CD, यहाँ पे आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है? SL, SL आपका क्या था? लिक्विड सॉल्वर, है ना। देन SV, ABCD के नीचे जो है आपका यहाँ पे लिक्विड सॉल्वर एग्जिस्ट करता है। नाउ अगेन ये सारी पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं कि अगर रोम्बिक वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कर्व AB आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रोम्बिक वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। BC कर्व को देखोगे, BC कर्व में क्या हो रहा है? मोनोक्लिनिक वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोक्लिनिक वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट? अगेन सब्लिमेशन कर्व। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर प्रेशर कर्व कौन सा कर्व है? ये CD है ना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ रोम्बिक मोनोक्लिनिक में
सो दिस इज अ ट्रांजिशन कर्व. व्हाई? क्योंकि फेज ट्रांजिशन हो रहा है रोम्बिक से मोनोक्लिनिक. दिस इज रोम्बिक, दिस इज मोनोक्लिनिक. सो आपका ये कर्व कौन सा है? ई एफ कर्व है ना? ई एफ कर्व है. नाउ बीई कर्व देखोगे, बीई कर्व था आपका ट्रांजिशन. ई एफ कर्व जब देखोगे आप, ई एफ में क्या हो रहा है? रोम्बिक से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सो दीज आर सम, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6. 6 टू फेज इक्विलिब्रिया. आपको सल्फर का डायग्राम आता है तो लिखने हैं. नाउ अगर आपको सिर्फ डायग्राम याद होगा तो आप ये सारी चीजें खुद ब खुद लिख लोगे. सो इम्पोर्टेंट इज व्हाट? इम्पोर्टेंट होता है जब आप फेज इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो आपको डायग्राम याद होना चाहिए. वाटर के डायग्राम में क्या था? वाटर के डायग्राम में सिर्फ 3 लाइंस थी. दैट इज व्हाट? दिस एंड दिस. एक जगह याद रखो, यहाँ आइस था, यहाँ वाटर था, यहाँ लिक्विड था. सल्फर का थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सल्फर के में आपको याद क्या रखना है कि 3 ऐसी लाइंस थी एंड देन 2. तो यहाँ पे आपको याद रहेगा मोनोक्लिनिक था, यहाँ पे आपका वेपर वाला था, यहाँ पे आपका रोम्बिक था, यहाँ पे आपका लिक्विड था, और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सटेंशन थी जो ई एफ लाइन या कुछ भी आप इसको एबीसीडी तो आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको डायग्राम याद रखना है. एंड देन यू कैन एक्सप्लेन ऑल द कर्व्स, ऑल द पॉइंट्स हियर. ओके, नाउ कमिंग टू दिस इज अगेन पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, फिर हम आते हैं कंडेंस्ड सिस्टम की बात करते हैं. तो जब हम ये होमोजीनियस सिस्टम की बात थी. ओके, व्हेन वी विल टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो यहाँ पे एक चीज डिफिकल्ट हो जाती है कि जब आप क्या बात करते हो, दो कंपोनेंट सिस्टम की. अभी हम वन कंपोनेंट की पढ़ रहे थे. जब हम दो कंपोनेंट सिस्टम की पढ़ते हैं तो जैसे सिल्वर लेड आ गया, तो ये दो कंपोनेंट हुए. अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ या तो सल्फर या तो सिर्फ वाटर. तो दोज वर व्हाट? वन कंपोनेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट टू कंपोनेंट, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द फेज डायग्राम. तो एक तरीका क्या है? या तो आप सॉलिड लिक्विड डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर दो, लिक्विड वेपर को एक बार ड्रॉ कर दो, वेपर सॉलिड को एक बार ड्रॉ कर दो, फिर इन तीनों को कंबाइन कर लो. ऐसा कर सकते हो, एक तरीका ये है. बट ये आप ऐसा कर सकते हो, बट द व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? सो वी विल सी हियर. फॉर अ सिस्टम, अगर टू कंपोनेंट सिस्टम होता है आपका, इट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, तो टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं आपके. तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की वैल्यू रखोगे, 2 + 2 4. नाउ वहां पे 3 - p था, है ना, वन कंपोनेंट सिस्टम में. यहाँ पे हो गया 4 - p. नाउ यू विल अप्लाई दिस 4 - p एवरीवेयर. नाउ मिनिमम नंबर ऑफ फेज कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है. तो यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 आ रही है. दिस मीन्स व्हाट? 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं: टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कॉम्पोजिशन. दिस इज द डिफरेंस. आपको हो सकता है आ जाए वन कंपोनेंट एंड द टू कंपोनेंट सिस्टम में. एक डिफरेंस बताओ. तो यू विल डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम and the phase rule. Okay, now it is difficult to construct such a diagram. So the possibilities, ये मैंने आपको बताया कि possibility क्या है, आप कैसे draw कर सकते हो. Now when you study solid liquid equilibrium specifically, है ना, this is what it is an application कि solid liquid equilibrium की आप application देखते हो तो ये it provides us information about what? Alloy formation and the crystallization, and such systems are known as condensed system. तो जब हम आगे अभी लेड सिल्वर पढ़ेंगे तो आप देखोगे इट इज अ कंडेंस्ड सिस्टम जिसमें कंडेंस्ड फेज रूल अप्लाई होता है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट? कि नॉर्मल फेज रूल एंड द कंडेंस्ड फेज रूल आर डिफरेंट. नॉर्मल फेज रूल में यहाँ पे 2 था, कंडेंस्ड फेज रूल में यहाँ पे 1 है. सो ये आपको याद रखना है. अगर सिल्वर और उसका लेड का डायग्राम आता है तो आपको कंडेंस्ड फेज रूल अप्लाई करके एक्सप्लेन करनी है चीजों को. ओके, नाउ जब आप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया पढ़ते हो तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? आइदर द कंपोनेंट्स आर मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल इन द लिक्विड स्टेट एंड आर कंप्लीटली इमिसिबल इन द सॉलिड स्टेट. इस चीज के बेसिस पे 3 टाइप्स के हैं आपके सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया सिस्टम. दैट इज सिंपल यूटैक्टिक, इनकॉन्ग्रुएंट एंड द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. तो दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट इसका ओवरव्यू बस हम देख लेते हैं. दैट इज व्हाट? ये है लेड एंड सिल्वर का डायग्राम. सो डायग्राम इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट? टेम्परेचर, कंपोजिशन के एंड द प्रेशर के बीच में ये पूरा डायग्राम बना होगा. यहाँ पे आप 100% लेड लोगे, यहाँ पे आप लेड लोगे, यहाँ पे आप 100% सिल्वर लोगे. ओके, यहाँ पे आप देखोगे क्या कि दिस इज व्हाट? द फेज रूल, दैट इज F डैश, जो आप यहाँ पे कंडेंस्ड फेज देखोगे.
तो ये वाला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ओके, एफ डैश। नाउ यू विल सी व्हाट, कि कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम वेरीज एज व्हाट, यहाँ पे 100% लेड है, यहाँ 100% सिल्वर है। तो पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, इसमें प्योर लेड है, ये देखो प्योर लेड है 100%, यहाँ देखोगे आप पॉइंट बी में प्योर सिल्वर है। Okay, now these the points A and B are represented what, melting point of pure lead, that is 327 पे ये lead melt होने लगता है, यहाँ आता है C point पे, 961 पे सिल्वर मेल्ट होता है एंड इट कम्स टू पॉइंट C। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे आपको कौन कौन से कर्व्स एक्सप्लेन करने हैं, यू विल एक्सप्लेन AC कर्व, AC कर्व में मेल्ट एंड द सॉलिड सिल्वर एंड द लेड इक्विलिब्रियम में है। BC देखोगे तो मेल्ट एंड द सॉलिड सिल्वर एंड द मेल्ट इक्विलिब्रियम में है। देन ECF एक्सप्लेन करना है, देन पॉइंट C एक्सप्लेन करना है। सो आपको डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन करना है ये मैंने आपको बताया। जैसे आप ACB देखोगे, द ACB कर्व, यहाँ पे आप क्या देखोगे, लिक्विड कर्व्स है, मेल्ट है ना, मेल्ट मीन्स लिक्विड कर्व्स है ना। नाउ मेल्ट के दो मतलब होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे कंसिडर मेल्ट एज अ व्हाट, लिक्विड फेज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लेड का एंड द सिल्वर सोल्यूशन का। नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दो है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल फेज की बात हो रही है, तो सिंगल फेज 1 है ना। यू विल अप्लाई व्हाट, फेज रूल, दो आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल गए, इट इज अ बाइवेरिएंट सिस्टम। नाउ टेम्परेचर एज वेल एज कंपोजिशन आप यहाँ पे वेरी कर सकते हो। नाउ EFGH, ई एफ कहाँ गया, एफ एंड जी एंड एच, दिस एरिया EFGH। ओके, EFGH में क्या है, सॉलिड एंड इन द रीजन बिलो दिस ओनली सॉलिड फेज एग्जिस्ट। सो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड सिल्वर एंड द सॉलिड लेड एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ कर्व AC, सो कर्व AC को आप देखोगे तो मैंने आपको बताया क्या, कि जैसे जैसे आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, द कर्व AC रिप्रेजेंट्स लिक्विड कर्व and it shows the variation in the melting point of lead and decreases on what, addition of the silver। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर आप यहाँ प्योर लेड है, इफ यू विल ऐड यहाँ पे सिल्वर ऐड करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगा। यहाँ पे क्या है, लेड, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे अगर आप लेड ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अगेन डिक्रीज होने लगेगा। सो व्हाट विल हैपन, द सेम, AC कर्व यहाँ आ जाएगा, BC कर्व यहाँ आ जाएगा। सो आपको ये सारी चीजें, नाउ BC, सो अगेन BC को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे, इफ यू विल ऐड व्हाट, at this point composition are saturated with silver, if you will add lead, the melting point of silver will again decrease। now point C, this is important in lead silver diagram, that is point C। so point C जो आपका है यहाँ पे क्या होगा, यूटेक्टिक पॉइंट है, that is what अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। तो कहाँ पर थे हम, yes, so intersection of the curve AC and the BC, this AC and the BC जहाँ पे आपके मीट कर रहे हैं, that is what point C। okay, now point C जो आपका यहाँ पे है, it is a eutectic point, जहाँ पे solid silver and the as well as what, silver and the lead, दोनों चीजें यहाँ पे। yes GK, what's your problem? हमें एक बार कंपोनेंट बता दिए, कंपोनेंट कैसे पहचानेंगे, कितने कंपोनेंट है। बात ही यहाँ पे दो कंपोनेंट की हो रही है ना, जब दोनों अलग अलग चीजें होंगी तो टू कंपोनेंट सिस्टम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वाटर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली सल्फर, if you are talking about only lead, then these are one, but I'm talking about lead and silver, this means what, there are two components। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अभी आपने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा ऊपर, क्या पढ़ा ऊपर आपने, वाटर का डायग्राम, फेज डायग्राम, नीचे आपने फिर उसके बाद पढ़ा सल्फर का फेज डायग्राम। क्या सल्फर के साथ कोई और कंपोनेंट इन्वॉल्व था, नहीं था ना, दिस मीन्स व्हाट, ओनली वन कंपोनेंट वाज इन्वॉल्व, दिस मीन्स व्हाट, सल्फर इज अ वन कंपोनेंट डायग्राम का एग्जाम, फेज डायग्राम का एग्जांपल है। ओके,
Now the point C here, point C is the eutactic point. इस point पे it is what saturated with what silver and the lead. Okay, now coming to what, in other words, we have three phases. What three phases? Two solids, that is silver and the lead, and a solution of, no, those are the phases. Phases क्या होता है? Liquid, solid, gaseous. तो solids के वो phases हैं कि solid किस किस phase में exist कर सकता है. Okay, rhombic हो सकता है. Those are what? Those are the allotropes. Phase, yes, है ना. फेज तो आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीन फेज होते हैं, बट मैंने जैसे सॉलिड्स के सल्फर के आपको बताया, दोज वर द एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपोनेंट या सेम सब्सटेंस, दैट इज, है ना, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, ऐसे सल्फर के एलोट्रोप्स थे वो. सो दिस मीन्स व्हाट, देयर आर थ्री फेजेस, दैट इज टू सॉलिड एंड अ सॉल्यूशन यूटैक्टिव पॉइंट पे in the equilibrium, and the degrees of freedom will be what, since there are three phases, that is two solids है, एक solution है, तो क्या हो जाएगा, 3 minus 3, this equals to 0. This means what, eutectic point जो C point था, it is invariant. Okay, अभी हमने ऊपर पढ़ा था invariant क्या होता है. So at this point, the both the temperature and the composition are fixed. Okay, you cannot change it until अगर आप equilibrium को disturb नहीं करते. It is a unique point. This implies that any variation in the temperature or the composition would cause what? One of the phase to disappear. This is very, very important, students. It comes in your exam. है ना, eutectic point आपको define करने आता है. This means what? अगर आप क्या करते हो? If you vary the temperature or the composition, what will happen? One of the phase will disappear. For example, if you are doing what? If you decrease the temperature, both solid and the melt would disappear. Okay, क्योंकि crystallize हो जाए. On the other hand, अगर आप temperature increase करते हो, तो solid and the melt, solid क्या हो जाएगा? Melt हो जाएगा, and क्या हो जाएगा आपका? You will have only melt, और कोई भी solid यहाँ पे नहीं बचेगा. So this point जहाँ पे एक invariant system है ना? Any change in the temperature or the composition will make the phase to disappear. This point is known as eutactic point, and the temperature is known as eutactic temperature. और इस point पे जो composition होगा, it is known as eutactic composition. Okay, so this whole paragraph is important. So ये आपका lead silver में सबसे ज्यादा important यही चीज थी. Now इसका application कभी कभी आपको आ जाता है. So इसका application ये है कि आप ओर जो होता है ना, सिल्वर का जो ओर है, आर्जेंटीफेरस ओर, उसमें से आप क्या अलग कर सकते हो? सिल्वर को अलग कर सकते हो. दैट प्रोसेस इज पैटिंसन्स प्रोसेस. नेम्ड प्रोसेस है, साइंटिस्ट ने दिया है, इसलिए इसका नाम इस चीज पे पड़ा है. तो इस पे क्या होता है? uses what, the formation of eutactic mixture by silver and lead in extraction of silver from argentiferous lead. That is what, lead silver alloy containing less than 0.1 silver, 0.1% silver जिसमें होता है, उसमें से ये प्रोसेस का यूज होके द फिनोमेना बिहाइंड दिस प्रोसेस, दैट इज जो इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन होता है, उसके पीछे फेज इक्विलिब्रियम की यूटैक्टिक पॉइंट का ही एप्लीकेशन है, जिसमें आप सिल्वर को अलग करते हो. तो यहाँ क्या होता है, ये जो एलॉय है, इट इज हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड द मेल्ट जो आपका ऑब्टेन होता है, उसको धीरे धीरे आप कूल करते हो, है ना. ये है जो आपका मेल्ट था, इसको आप धीरे धीरे कूल करते हो, तो इससे आपको सॉलिड चीजें अलग मिलने लगती हैं. तो ये पूरा आपको यही एक्सप्लेन किया गया है. नाउ इनकॉन्ग्रुएंट एंड द कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. सो एक और देखो, ये जैसे जीके यू आस्क्ड ना कि टू कंपोनेंट सिस्टम कैसे कैसे पता चलेगा. नाउ यू सी हियर the phase diagram of ferric chloride and the water. This means what, two components are involved, FeCl2 and the water. So these are what, two component system का example है. Okay, so ये सारी चीजें आपको दी हैं. अगेन यहाँ पे आपको दिया है कि अगर आप फेरिक क्लोराइड का देखते हो, तो हाइड्रेट्स इसके n नंबर, जो हाइड्रेट्स आपके पॉसिबल हैं, ये दिया हुआ है. दैट इज 2 डेकाहाइड्रेट, दिस मीन्स 12. हेप्टा मीन्स 7 हाइड्रेट भी इन्वॉल्व हो सकता है. 5 हाइड्रेट मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स.
4 तो टेट्राहाइड्रेट्स, ये सारे आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट इज हाइड्रेट्स increases the number of areas and the eutectic points. तो ये आपका FeCl2 and what वाटर का फेस डायग्राम का एग्जांपल है. सो विल सी यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना. नाउ कमिंग टू इनकॉन्ग्रुएंट एंड द कॉन्ग्रुएंट, तो not much important. Now again see there, see here what sodium and the potassium system. तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, बस आपको जो इम्पोर्टेंट है दैट वाज सिल्वर लेड एंड द वाटर एंड द सल्फर. इसके डायग्राम्स आपको इम्पोर्टेंट थे. तो आज रात की क्लास में मैं आपको नेम्ड रिएक्शंस कराऊंगी, सारी नेम्ड रिएक्शंस. तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे ज्वाइन करना, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देना कि दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शंस का आता है और वो सीधा सीधा स्कोरिंग है ना. जो चीज आपको पता है कि वो आनी है तो वो पढ़ के ही जानी चाहिए. ओके, सो आई विल टेक योर क्लास इन द इवनिंग एंड वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेम्ड रिएक्शंस जितनी भी हैं, कम से कम 20-30 नेम्ड रिएक्शंस है, ठीक है. तो 20 तो होंगे कम से कम, तो वो आप क्लास ज्वाइन करना. एंड फ्रॉम टुमारो दैट इज व्हाट, आज कितनी है, आज 16 है, 17 एंड द 18 दोनों क्लासेस में पेपर सॉल्व कराऊंगी. 2 पेपर्स हैं आपके. सो उसके बाद यू हैव 19. सो 19 को आप अपना रिवीजन करना. ओके, एंड आप फिर एग्जाम. ओके, सो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जीके मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, सो यू कैन रिफर टू द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. ओके, इट इज अ डेरिवेशन ओनली, ठीक है. फेज इक्विलिब्रियम में यू कैन रिफर, सो आपको वहां मिल जाएगी. ओके, so I'm ending the meeting and join in the evening for named reactions. Okay.